Good morning, students. So today let us continue with the next part of the chapter, that is alkenes. Alkenes. Last time we have completed the chapter alkanes. So let us first define alkenes. Now alkenes are unsaturated hydrocarbons which will contain carbon-carbon double bond. See here, यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे दोनों कार्बन एटम्स पे टेट्रा वैलेंसी जो है टेट्रा वैलेंसी 4 bonds for both the carbon atoms are satisfied by single covalent bond as well as double covalent bond. So alkenes are unsaturated hydrocarbons containing carbon carbon double bond and the general formula उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n जहाँ पे n मतलब क्या n means number of carbon atoms, n at the base of C means number of carbon atoms, n at the base of H means number of hydrogen atoms. So substituting the values of n is equal to 1 2 3 you will get the different members of alkene family. Okay, now we continue with the homologous series, very important homologous series of alkenes. So let us find the first member of the alkene family. You take n is equal to 1 n is equal to 1 तो आपको क्या मिलेगा जनरल फॉर्मूला में you will get what CH2, correct, which is called methylene group, which is not existing, it is only a part of any carbon chain in any organic compound. So we are not going to write down the structural formula and IUPAC name for the CH2 group. Next you take n is equal to 2, you get C2 and H4. So C2H4 becomes the first member of the alkene family, जिसका नाम है ethene. Okay, इसका नाम है C2H4 ethene. Now how to write down the structural formula for ethene? 2 carbon atoms, okay, and 4 hydrogen atoms. So H here and H here, H and H. अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कार्बन एटम्स के पास 3 bonds है, 3. This carbon atom 1 2 3. This also 1 2 3. So double bond here. Okay, so this becomes the structural formula for this particular first member of the alkene family C2H4 and the IUPAC name will be ethene. How we got the IUPAC name? दो कार्बन एटम है इसलिए रूट वर्ड क्या हो गया, रूट वर्ड क्या हो जाता है eth और डबल बॉन्ड है इसलिए डबल बॉन्ड है मतलब वो क्या है, कौन से हाइड्रोकार्बन है अल्कीन्स ENE. That's why after root word the suffix will be ENE. Same way if you continue n is equal to 3 you will get C3 H6. अब कैसे लिख सकते हैं अभी 1 2 3. So here 1 and here 3 and here H. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे. ओके, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कौन सा है 1 2 3. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 बिकॉज डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आना चाहिए. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 सेकंड पोजीशन आता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 पोजीशन 1 आता है. दैट्स व्हाई हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. What is the name of this particular alkene? This will be root word 1 2 3. 3 carbon atom pro. First position double bond. So 1 hyphen and then EN. Once again to remind you, आपको याद दिलाने के लिए, when you start numbering the carbon chain, the longest chain of carbon atom, parent chain, and when you write down the IUPAC name. Okay, between the letter alphabetical letter and number hyphen
Okay, and number and again letter hyphen. Please keep in mind. Okay, in this way you can continue writing the two more members of alkene family, that is okay butene, pentene, substituting the values of n is equal to 4 5. अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आइसोमर्स इन alkenes. Now isomers, as you know that isomers are the structures having same molecular formula but different structural formula. चार में हम लोगों ने एग्जांपल लिखा है ब्यूटीन C4H8. देखते हैं अभी हम लोग कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिख पाते हैं ब्यूटीन C4H8 के लिए. 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, देन हियर CH2 CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3. ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया. फिर आएगा 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3. ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर जो इससे अलग है. और थर्ड आएगा 1 2 3 ओके एंड ये डबल बॉन्ड, तो ये CH2 1 2 3 4. ओके, तो आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि तीनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट है. यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन चेन जो है वो ब्रांच है. बट व्हाट द सिमिलरिटी, क्या सिमिलर है यहाँ पे? चारों स्ट्रक्चर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H8. okay, here also C4H8 and here also 1 2 3 4 C4 3 4 5 6 7 8 C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. तो ये हो गया हमारे आइसोमर ब्यूटीन के लिए. लेकिन मोर प्रिसाइजली स्पेसिफिकली व्हेन यू वांट टू क्लासिफाई द आइसोमर्स, ओके, सो वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इन अल्कीन्स, जिसमें फर्स्ट आइसोमर्स है चेन आइसोमर्स. तो चेन आइसोमर्स के लिए हम लोग सेम एग्जांपल रखेंगे ब्यूटीन दैट इज C4H8. अब हम लोग समझेंगे कि चेन आइसोमर्स मतलब क्या है. सो यू फर्स्ट ड्रॉ द फर्स्ट आइसोमर 1 2 3 4. चेन आइसोमर मतलब आपको पता है कि आपको कार्बन के जो चेन के स्ट्रक्चर है आपको डिफरेंट वे में बताना है. यहाँ पे हमने स्टेट चेन बता दिया है, 4 कार्बन आइटम्स 1 2 3. यहाँ पे भी 4 कार्बन आइटम्स है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन आइटम जो है वो ब्रांचिंग है. तो कार्बन का जो चेन स्ट्रक्चर है वो डिफर हो गया. नाउ यू सैटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम विद हाइड्रोजन H3. यहाँ पे आप एक डबल बॉन्ड देंगे, देखिए यहाँ पे CH2, ठीक है, एंड दिस विल बी नाउ CH. यहाँ पे CH है और यहाँ पे क्या आएगा CH2. सो 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए. 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम्स. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड वैल्यू बता दीजिए CH2 एंड देन हियर CH3 एंड हियर CH3. सो हाइड्रोजन कितने हो गए 5 6 7 8 4 कार्बन. दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्बन के जो चेन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. नाउ वी कंटिन्यू द सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर इन अल्कीन्स. सेकंड टाइप हम यहाँ पे लिखेंगे second type of isomer in alkenes, position isomers. सेम एग्जांपल है C4H8. C4H8 पोजीशन आइसोमर्स 1 2 3 4 और दूसरा आइसोमर लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड बता दीजिए CH2, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया CH2 CH3, ये हो गया फर्स्ट आइसोमर. और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बताएंगे CH3 CH CH और यहाँ पे CH3. दोनों में डिफरेंस क्या है?
दिस इज व्यू 1 इन और ये क्या है व्यू 2 इन। समझ में आया आपको? व्यू 2 इन 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड 4 कार्बन एटम्स है इसलिए रूट ओवर नियर व्यू। सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड 2 and then okay, so this is the concept of isomers in alkenes. Okay, now small concepts also they are given like the physical properties of for example ethene। एक अल्कीन का एग्जांपल उन्होंने लिया हुआ है ethene। so ethene के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले हम लोग यहाँ पे ethene का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि ethene का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ethene। ethene स्ट्रक्चर बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4। तो C यहाँ पे डबल बॉन्ड H H H एंड H। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन कैसे करना है स्ट्रक्चर ऑफ ethene। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन देयर आर 4 CH दिख रहा है आपको? चार CH सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इथीन में क्या है? 4 CH सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। एक 1 C डबल बॉन्ड C है और ये जो बॉन्ड एंगल है एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, और ये जो है कितना है 120 डिग्री। तो स्ट्रक्चर ऑफ ethene में आपको ये 3 मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि यहाँ पे 4 CH कोवैलेंट बॉन्ड्स है, फिर C डबल बॉन्ड Cg है, एक डबल बॉन्ड है और बॉन्ड एंगल HCC और HCH। देखिए यहाँ पे लिख से HCC बॉन्ड एंगल। ओके, यहाँ पे वैसे बता सकते हैं इसको, यहाँ तक भी आप बता सकते हैं। ओके, HCC 120 डिग्री और HCH 120 डिग्री। ओके, तो जैसे आपने बताया कि इसी ethene के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी उन्होंने दिए हुए कि ethene is highly inflammable, easily they can catch fire. Secondly, it is also used as an anesthetic. Okay, so anesthetic means anesthetic it can be ethene is used as anesthetic means which will do not allow to show the pain. Okay, wherever this particular alkene is applied you won't get the sense of pain. ओके, जैसे आप हिंदी में आप याद रख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ओके, इसको आप हम कह सकते हैं संवेदनहारी। मतलब जहाँ पे भी ethene को अप्लाई किया जाएगा वो बॉडी के वही पार्ट को वो नम कर देते हैं जहाँ पे आपको पेन का फीलिंग नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड एनेस्थेटिक, यूज्ड एज एनेस्थेटिक। ओके, सो दिस वाज द पार्ट फॉर टुडे। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट केयरफुली, रेफर माय नोट्स केयरफुली। ओके, एंड आई होप ऑलरेडी यू माइट हैव रिटन द आंसर्स फॉर रिवीजन क्वेश्चंस। मेंटेन योर केमिस्ट्री हॉबीज। ओके, with the next concept that is preparation of alkenes, and the last part will continue in the next lecture. Okay, have a good day. Thank you.